Well, hello and a very warm welcome to all our viewers. You're watching the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanav Bali and I'm here being joined by Bansal Shah. And we are here to talk about India versus South Africa, the fourth T20I between the two teams, which was played in the city of Johannesburg. What a splendid performance by the Indian cricket team. I mean, this series, even though South Africa एक मैच जरूर जीती है, लेकिन I think this series easily belongs to this young Indian setup जिन्होंने ठान लिया है कि एक ही गियर में क्रिकेट खेलेंगे और उसी तरीके से लगातार मैच खेलते जाएंगे. ऑब्वियसली बीच में फेलियर्स भी आएंगे, बट दिस अप्रोच दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट द इंडियन टीम टुक वेल under the captaincy of Rohit Sharma. Virat Kohli was also in the team, but now that we have won the World Cup, the two stalwarts, or rather, I should say, the three senior men have retired from this game. The youngsters have stepped up, and how you can see the enthusiasm, the zeal, and the aggression with which this young Indian side is playing. I'll tell you the basic scoreline of the match. India won the toss, decided to bat first, and they scored 283 for the loss of just one wicket. This may sound a lot in a T20 game, but I think nowadays, especially after the last season of IPL, 250 is nothing in a T20I match. Bansal, 250 तो ऐसे बनते हैं जैसे 150 बनते थे एक टाइम पे T20I में. दिस स्कोर कार्ड tells you everything you need to know. संजू सैमसन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ पिछले 5 T20I में 3 सेंचुरीज मार चुके हैं यार इंटरनेशनल लेवल पे. 109 ऑफ जस्ट 56 बॉल्स एंड there's this guy तिलक वर्मा जो 2 सेंचुरी मार चुके हैं अपने पिछले दिन इनिंग में. 120 रन ऑफ जस्ट 47 बॉल्स. सैमसन 194 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तिलक वर्मा 255 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. बंसल, हाउ डू यू सम अप दिस मैडनेस बाय द इंडियन क्रिकेट टीम? I think you summed it up appropriately and very with the very right word there. Madness, like it's something unbelievable. Like to score 283 runs against a team like South Africa. Like last time जब बांग्लादेश के सामने 290 स्कोर किए थे तब भी मुझे लग रहा था this is too much. Like the way Indian batters are batting, this is Yeah, unexpected, and I thought it was a one-hit wonder kind of a thing. But again, reaching yeah, 283 runs, and this time with the loss of just one wicket, like this is unbelievable to then, especially coming from someone like Sanju Samson जो पांच लास्ट 5 T20s इंडिया खेला उसके पहले लग ही नहीं रहा था कि ये चीज भी कर सकते हैं संजू सैमसन. लाइक सो जस्ट ब्रिलियंट. कूडोस टू संजू सैमसन मैन. मतलब जो काफी एक्सपर्ट जो काफी टाइम से बोल रहे थे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ज्यादा टैलेंट है उनमें. और इतने टाइम से जो इंडियन टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर सब संजू सैमसन को चांसेस दे रहे हैं डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड फेलियर्स. ही इज नाउ पेड इट बैक इन yeah, with interest, I would say. Like with these 3 centuries, he's the first batter now to score 3 centuries in yeah, a single calendar year, and 3 centuries in just 5 T20 innings is just simply amazing. And South Africa के yeah, सामने ये दूसरा सेंचुरी उधर जाके ही, and that too coming after those two ducks. मतलब एक टाइम पे ऐसा अगर बैक टू बैक आप डक पे आउट होते हो तो थोड़ा दिमाग में वो रह जाता है कि यार मुझे क्रीज पे रुकना है, रन बनाने हैं. बट देन टू play at such a strike rate, like yeah, it's unreal. And Tilak Verma, I remember Rohit Sharma saying it when he made his IPL debut कि तिलक वर्मा बहुत लंबा खेलेगा, इंडिया के लिए खेलेगा. एंड आई वाज लाइक कि अभी से क्यों बोल रहे रोहित शर्मा, इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि ये इंडिया के लिए खेलेगा और बहुत लंबा खेलेगा. बट नाउ वी नो, नाउ वी कैन सी व्हाट ही इज एबल टू डू, व्हाट ही इज डूइंग. सम अमेजिंग शॉट्स मैन, सम ब्रेड टेकिंग शॉट्स. लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा खेला था उन्होंने. एंड इस बार yeah. भी the fact that they've taken apart the South African bowling lineup, I feel is the best thing. Like, Absolutely, absolutely. I mean, the way these batters are approaching T20I cricket now, or क्या है? Vansa, what do you think? Is it the fearless approach? Is it that they don't have a baggage? जैसे senior batters baggage लेके आते थे कि यार we are senior batters, we need to perform, we need to carry the team. ये youngsters है, nothing much to lose. हालांकि pressure रहता है अपनी position का यार आपके सर पे कि आपने अगर perform नहीं किया तो आपकी position खतरे में है. What do you think is the reason that we are seeing these performances so often? ठीक है, वन ऑफ आती है, आप समझते हैं right. एक दिन था, वो एग्रेशन आया, खेल गए, पर लगातार सेंचुरीज आ रही हैं, 200 250 आ रही हैं. व्हाट इज द रीजन? I think that is the reason that they are trying to play fearlessly. They are trying to show the intent that they have been consistently talking about for quite a while now. रोहित शर्मा ने बहुत बार बोला कि हमें ऐसे ही खेलना, हमें या ऐसे ही खेलना. या And now I think they're trying to
इम्प्लीमेंट इट इवन मोर, एग्जीक्यूट इट इवन मोर देन अर्लियर। लाइक जिस तरह से खेल रहे हैं, मतलब एक मैच में आपने देखा कि सेकंड सेकंड T20 आई गेस, बहुत ही कम स्कोर बना, पिच ऐसा था, या उधर भी आप मारने की कोशिश कर रहे थे, तो 124 रन में टीम इनिंग्स समाप्त हो गई उधर। बट देन बिल्कुल। बाकी के जो गेम्स हुए और जिस तरह बैटिंग की है इंडिया ने, इट्स जस्ट अमेजिंग। लाइक एंड ऑब्वियसली यार, मतलब ये जो प्लेयर्स है काफी यंग है, दे डोंट, दिस जनरेशन स्पेसिफिकली डज नॉट थिंक टू मच, लाइक बहुत ज्यादा या खुद पे प्रेशर नहीं लेते, ज्यादा चीजों का लोड नहीं लेते, सो टू से इन अ वेरी लेमन टर्म। तो वो सारी चीजें आई थिंक फैक्टर इन करती है, मतलब इम्पैक्ट करती है इनके इनके या परफॉर्मेंसेस पे भी। एंड आई थिंक टीम मैनेजमेंट, स्काई जो अभी कैप्टन है टीम के, एवरीवन हैज गिवन देम द फ्रीडम कि जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। एनीवेज T20 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, अभी हम जस्ट चैंपियंस बने हैं, एंड अभी कोई ऐसा है नहीं कि ये सीरीज हार गए तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। सो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दोस थिंग्स, it's just a good way to play T20 cricket, I feel. And also the fact that IPL में इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है इन लोगों को, तो कुछ इन लोगों को एब्सोल्युटली। भी ऐसा या नहीं लगता कि यार या नई जगह पे हम खेल रहे हैं या नए बॉलर्स को खेल रहे हैं। सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स, एंड इट इज फाइनली कल्मिनेटिंग। लाइक आई थिंक जिस तरह इंग्लैंड ने वो ओडीआई में रिवॉल्यूशनलाइज किया था, टेस्ट में कर रहा है, आई या थिंक इंडिया आर नाउ डूइंग इट इन T20s, एंड या soon, द maybe soon. अप्रोच दैट दे हैव। या Yeah, exactly. Soon we might see a 300 run total या input by a So full that member team. that's अब just मुझे लग it रहा है कि feels, बहुत जल्दी हो yeah, जाएगा वो। it's just around the corner, ऐसा ही लग रहा है। बट संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, तिलक वर्मा नंबर 3 खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जो आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर है T20 में, सोटू से अभी तक शुभमन गिल को तो वाइस कैप्टन तक अनाउंस कर दिया गया था। Right. अब क्या करना है? अब क्या संजू सैमसन जिनके लिए पहले ही थी सोशल मीडिया कैंपेन, उनकी जगह नहीं बनती, उनको लेते नहीं है, ट्रेंड्स होते हैं, हैशटैग्स चलते हैं, अब तो 5 इनिंग्स में 3 सेंचुरी मार दिया। अब जायसवाल और शुभमन गिल वापस आएंगे, तिलक वर्मा ने 2 सेंचुरी मार दी है। क्या बंसल, अगर आप उस टीम मैनेजमेंट में हैं, क्या करेंगे आप? यार I'm for a one of time, I'm very happy that I'm not supposed to take that decision. मतलब इंडिया में कोई ऐसा या नहीं है जो क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था, बट ये एक चीज ऐसी है कि यार ठीक है, चलो ये डिसीजन तो एटलीस्ट नहीं लेना है हमें कि जब वो दोनों वापस आएंगे या जब सारे ही जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स है वापस आएंगे, तो क्या चेंजेस करेंगे टीम में। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेवी हेडेक। मतलब अभिषेक शर्मा इज नॉट स्कोरिंग अ सेंचुरी, बट आज भी वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, लाइक स्कोरिंग बिल्कुल 36 बिल्कुल। इन 18 बॉल्स। पिछले मैच में भी 25 गेंद में 50 रन बनाए थे उन्होंने। सो ही इज आल्सो डूइंग हिज बिट, लाइक ही इज गिविंग दैट स्टार्ट दैट he is known for, that he was doing in IPL, and that I think the team management and everyone wants from him. So I think it is going to be very difficult when Jaiswal and Shubman Gill come back to the T20 setup. And only I don't know कि मतलब अगरकर या स्काई या गंभीर या जो भी थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, सिलेक्टर्स है, किस तरह डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाए किसको बाहर रखे। लाइक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू टेक दैट डिसीजन। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। वेल ऑल्सो टॉक अबाउट द बॉलिंग यार। अर्शदीप सिंह जो अपेरेंटली रिटेन नहीं हुए हैं पंजाब किंग्स की तरफ से, वो आईपीएल ऑक्शन से जस्ट पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। 3 विकेट्स इन 3 ओवर्स, गिविंग अवे जस्ट 20 रन्स। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट्स लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट्स लिए, और हार्दिक, रमनदीप और रवि बिश्नोई ने 1 विकेट ईच। वरुण चक्रवर्ती यार बहुत इंटरेस्टिंग केस बना रहे हैं अपने लिए। एक चांस मिला उनको वापस इंडियन टीम में आने का 3 साल बाद, और वो प्रूव कर रहे हैं खुद को। डू यू थिंक वरुण चक्रवर्ती नाउ वुड बी द मेन स्टे इन द फर्स्ट चॉइस इंडिया T20 11? I think he will be in the 15 now going forward for a significant period of time. And अभी जो next कुछ टूर्नामेंट्स इंडिया खेलेगी T20s में, उसमें आई थिंक उसको कंटिन्यूसली चांसेस मिलेंगे, उसको और रवि बिश्नोई को भी। एंड if they continue performing, I don't see them going away soon enough, because चहल को obviously consider नहीं कर रहे हैं। Jadeja has retired. Ashwin is no longer in T20 setup. Kuldeep Yadav is one guy who might come back to the T20 setup, but वो भी क्योंकि टेस्ट और ओडीआई ज्यादा खेलते हैं, तो आगे जाते हुए शायद उनको ज्यादा T20 में चांसेस ना मिले। एंड इफ दिस गाइज आर परफॉर्मिंग कंटिन्यूअसली, दिस बिश्नोई, चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल, देन आई डोंट थिंक कि उनको टीम से फिर से निकाल देंगे जब वर्ल्ड कप नजदीक आएंगे, बिकॉज इफ दे आर डूइंग वेल कंटिन्यूअसली। एंड चक्रवर्ती को हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में जब सिलेक्ट किया था, बहुत बैकलैश मिला था क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट नाउ
he's showing why he was selected back then as well, and I think it's a good redemption story once again. So Yeah. let's see what happens going forward, but मुझे लग रहा है कि उनको एक लॉन्ग रोप मिलेगा अब आगे Yeah. जाते हुए. या नो एब्सोल्युटली, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं जरूर मिलेगा। और अब इंडिया की जो अगली T20 असाइनमेंट है दैट इज अगेंस्ट इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। 22 जैन को सीरीज शुरू होगी, इंडिया में ही होम सीरीज है। 22 जैन को शुरू होगी। 5 मैच की T20 सीरीज है वो। पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा राजकोट में, चौथा पुणे में और पांचवा मुंबई वानखेड़े में। ये 5 मैच की T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, और यही सेटअप अब आपको देखने को मिलेगा वहां पे। ये यही यंगस्टर्स किनको कंटिन्यूसली मौका मिलता है, किनको नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बट एज ऑफ नाउ इंडियन T20 टीम इज लुकिंग एन एब्सोल्यूट गन टीम। 3-1 से सीरीज जीती है, सबको इम्प्रेस किया है। Centuries for fun, wickets for fun, and they have been up to the mark in all the matches. Of course, एक मैच अगर हटा दे जो हारी टीम इंडिया, but then those matches come ऑफन। कुछ मैचेस बाद आ जाते हैं, एक मैच हारना अब अपेरेंटली अलाउड होता है, ये नया वो है। बट यस, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन T20 टीम इज डूइंग वंडर्स, एंड होपफुली 2026 में, 2026 में अगला T20 वर्ल्ड कप है, ऐसे ही यंग टीम रही डिफेंड कर पाएगी, बट बहुत दूर है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एज ऑफ नाउ इट्स सुपर इंप्रेसिव, द यंग boys, the young gen, they are doing wonderful job in the India colors, and we'll be here, Cricket Next will be here talking about the Indian T20 team. But for now, T20 फॉर्मेट को ताला मार के सेफ में रख दीजिए, क्योंकि अब टेस्ट का सीजन आ रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है। तो उसके लिए क्रिकेट नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए and follow us across all our social media platforms. I would like to thank Bansal Shah for connecting with me and talking about this amazing match and this amazing performances by the Indian youngsters. You guys, as I said, please do subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon, and follow us across all our social media platforms. Until then, do take care of yourself and have a good night.